Hello students, yesterday we have started our next chapter linear programming. Linear programming according to NCERT chapter number 12 and according to Spectrum it's chapter number 14. We have done one question yesterday that is from the chapter 12, that means from the NCERT question number 1. Today we are going to do our next question. Next question is question number 2. This is in NCERT, this is question number 2. So today we will do this question. Yesterday we have done maximize, right? Now this question is minimize this subject to concentrants. And in our last lecture, that means yesterday, we have done question with single concentrate. These are already there. X greater than 0, y greater than 0. But now today we have two lines. Yesterday we have done only with the one line. Today we have two lines. So let's start. First line we will take. We have inequality. हम यहाँ पे ignore. Hello students. Yesterday we have started our next chapter linear programming. Linear programming according to NCERT chapter number 12 and according to Spectrum it's chapter number 14. We have done one question yesterday that is from the chapter 12, that means from the NCERT question number 1. Today we are going to do our next question. Next question is question number 2. This is in NCERT, this is question number 2. So today we will do this question. Yesterday we have done maximize, right? Now this question is minimize this subject to concentrants. And in our last lecture, that means yesterday, we have done question with single concentrate. These are already there. X greater than 0, y greater than 0. But now today we have two lines. Yesterday we have done only with the one line. Today we have two lines. So let's start. First line we will take. We have inequality. हम यहाँ पे ignore. First we have a line x plus 2y equals to 8. Number 1. अब क्या करना है? Put x equals to 0 in equation 1. x को 0 पुट करना है. x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 4. तो पॉइंट बन गया 0,4, राइट? अब उसके बाद क्या करना है हमें? y को 0 पुट करना है. पुट y equals to 0 in equation 1. y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? 8. तो पॉइंट बन गया मेरे पास 8,0. अभी लाइन चेक करनी होती है कि हमारे पास जो लाइन की शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स रीजन है या दूसरी साइड. तो क्या करेंगे? पुट x equals to 0, y equals to 0 in equation 1. अब जब ये चेक करते हैं तो यहाँ पे इक्वल छोड़ते हैं, इनइक्वलिटी उठाते हैं. तो यहाँ आएगा आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन 8. तो ये आएगा 0 लेस देन 8. तो ये ट्रू है. तो लाइन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन की ओर आएंगी. अब नेक्स्ट, अब नाउ सेकेंड लाइन वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. फिर से इसको नंबर दे दो 2. पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2. x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो क्या आएगा? y आ जाएगा हमारे पास 6. तो पॉइंट बन गया मेरे पास 0,6. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 0. अब y को 0 पुट करो तो क्या आएगा? x कितना आएगा? 4. तो पॉइंट बन गया हमारे पास 4,0. अब क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2. अभी यहाँ पे इक्वलिटी लेके चलनी है तो 0 प्लस 0 लेस देन 12. तो 0 लेस देन क्या आ गया? 12 आ गया. तो ये भी क्या हो गया? हमारे पास ट्रू हो गया.
ये दोनों लाइंस के पॉइंट्स बन गए हैं मेरे पास। अब ये पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, राइट। ये हमारे फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हैं, ये हमारे सेकंड लाइन के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ये हो गया वाई, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये हमारे पास हो गया एक्स, राइट। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके, ज़्यादा नहीं है तो 1 सेंटीमीटर का ही गैप लेके मैं कवर कर लूँगी इसको, क्योंकि 8 तक है हमारे पास, तो 8 तक आराम से आपके पास हो जाएंगी वैल्यूज़। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर 8 तक हैं एक्स की वैल्यूज़, 6 तक वाई की वैल्यूज़ हैं, बहुत हो जाएंगी। 1 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 0,4 फर्स्ट लाइन का, x0 y4, मतलब ये हो गया x0 y4 फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड है 8,0, तो ये पॉइंट होगा वो 8x का y का 0 हो गया पॉइंट। ये भी एक लाइन हो गई, तो एक लाइन पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैच कर लेते हैं इसको, ये था। अब इसका हमारे पास है शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन था टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर ही आनी थी क्योंकि ट्रू थी लाइंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। उसके बाद मेरे पास है सेकंड लाइन के पॉइंट। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है 0,6, x0 है y6 है, तो मतलब पॉइंट कौन सा होगा, ये 0,6। सेकंड है 4,0, मतलब ये वाला पॉइंट 4,0। अब इसकी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, पहले कर लो लाइंस ड्रॉ, ये मेरे पास आ जाएगा ऐसे। अब ये भी हमारे पास क्या था, ट्रू था, तो इसकी भी लाइंस आएंगी हमारे पास, है ना। इसकी लाइंस किस साइड आएंगी हमारे पास, इसकी लाइंस आएंगी फिर से टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब इसकी लाइंस आ गई मेरे पास इस साइड, ये वाली लाइन थी, ठीक है। अब x ग्रेटर दैन 0 था, y ग्रेटर दैन 0 था, मतलब उसकी लाइंस कैसी होंगी, y ग्रेटर दैन 0 और x ग्रेटर दैन 0, ये और ये ऐसे। अब चारों लाइंस किस पोर्शन में आई हैं, चारों लाइंस हमारे पास किस पोर्शन में आई हैं, इसमें, ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन हुआ। इसमें पिंक भी है, जो भी मैंने कलर अलग अलग यूज़ कर लिए तो उससे इजीली, अगर ये पोर्शन देखते हैं तो इसमें 3 लाइंस ही हैं, एक लाइंस नहीं आई, इस लाइन की लाइंस नहीं आई मेरे पास, पर्पल कलर जो मैंने यूज़ किया नहीं आया, इसमें भी नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें पिंक कलर नहीं आया। इसका मतलब शेडेड पोर्शन मेरे पास ये हो गया। आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज तो ऐसे नॉर्मली पता चल ही जाता है। ये मेरे पास हो गया शेडेड पोर्शन, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हो गया। अभी ये पॉइंट पहले से ही पता है, कॉर्नर पॉइंट्स पता होते हैं इसके, ये 0 0 ये है हमारे पास, ये भी पता है। ये पॉइंट अब मुझे नहीं पता, ये पॉइंट मैंने अब क्या करना है, फाइंड करना है। ये मान लो A हो गया, ये ले लो B, ये ले लो C, ये O हमने पहले से लिख रखा है। अब ये B पॉइंट फाइंड करना है। अब ये देखो यहाँ पे 2 लाइंस कट हो रही हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, 2 लाइंस कट हो रही हैं। एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है जो हमने लिखी थी, तो B पॉइंट कैसे निकलेगा, ये दोनों लाइंस कट हो रही है, मतलब ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, राइट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो लाइंस थी मेरे पास, मैं अब यहीं स्पेस पे करी हूँ, आपने आगे करना है। वी विल सॉल्व लाइन 1 एंड 2। तो लाइन 1 थी हमारे पास x + 2y = 8, सेकेंड थी 3x + 2y = 12, ठीक है। यही थी हमारे पास दोनों लाइंस। अब देखो दोनों में y दोनों का क्या था, सेम ही था, तो यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये कितना हो गया माइनस का 2x, यहाँ कितना आएगा आपके पास 4, वो भी माइनस का, कटिंग x कितना हो जाएगा 2। अगर x 2 है तो पुट कर लो, पुट इन 1, 1 में पुट करो, यहाँ 2 + 2y = 8, ये हो गया 2y = 6, तो y कितना आ गया 3। मतलब जो आपका पॉइंट बन गया वो बन गया 2,3, x 2 है, y कितना है 3, मतलब ये पॉइंट आपका हो गया 2,3। डन। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारा, जो हमारी इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रही है वो ऐसे निकालते हैं, जो 2 लाइंस कट हो रही हैं। अब यहाँ ये 2 लाइंस कट हो रही थी, अगर कन्फ्यूज़न है, जैसे मैंने पहली लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी, फर्स्ट लाइन हुई थी x + 2y <= 8, इसके ऊपर लिख लेना है। सेकेंड लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 3x + 2y, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, है ना, 80 वाली, उल्टा लिख लिया है, तो x + 2y <= 8, ये 3x + 2y <= 12, यहीं ऊपर हम लिख लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अभी तो ये 2 लाइन्स है, आगे हमारे पास 3-3 लाइन्स वाले क्वेश्चन भी है, वहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, किसके साथ इस क्वेश्चन को करोगे। तो ये इंटरसेक्शन हो गई। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, उसने पूछा है मिनिमाइज़ करना है। अब मिनिमाइज़ करोगे क्वेश्चन को, मिनिमाइज़ करने के लिए अब हमें z पे ये सारे पॉइंट्स लाई करवाने हैं, ठीक है। अभी ये इसको लिख लो आप, जो भी बना हमारे पास, ये हमारा रीजन बन गया, शेडेड पोर्शन आ गया, यहाँ लाइन लगा के लिख लो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ये आ गया। अब देयरफॉर क्या है, OABC, OABC इज द फिजिबल रीजन एंड पॉइंट्स लिख लो क्या है, O बन गया 0, 0, ठीक है। उसके बाद A पॉइंट है हमारे पास 0,4, B पॉइंट है हमारे पास 2,3 एंड लास्ट है C पॉइंट 4,0 आर कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये हमारे हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमें इन पे क्या करवाना है, पॉइंट्स को Z पे लाई करवाना है। तो एट O मतलब 0, 0, Z क्या होगा, वो था हमारे पास -3x + 4y, -3 × 0, 0, +4 × 0, 0, क्या आ गया 0। फिर एट A पे, A कितना था 0,4, 0,4 पे क्या बन जाएगा वो, Z = 0 + 16, ये आ गया मेरे पास 16। फिर हमें निकालना है नेक्स्ट है हमारे पास एट A हो गया, अभी हमारे पास है B पॉइंट, B था हमारा 2,3, Z = कितना है, Z वहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -6 + 12, तो ये 6 आ जाएगा। फिर एट लास्ट बचा हमारे पास पॉइंट C पॉइंट है मेरे पास 4,0, C पे Z कितना होगा 4, 0 दे रखा है, 4 यहाँ पे हो जाएगा -12 + 0, ये बन गया -12। अब उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये 6i -12i, पीछे वाली थी 0 और 16, तो मिनिमम सबसे जो नेगेटिव है वही मिनिमम होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू = -12 एट 4,0, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो ये हमारा हमने किया है सेकंड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, फिर हमारे पास है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, मतलब टिल 6 तक आपके क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के 2 लाइंस वाले ही हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 लाइंस वाले क्वेश्चंस आप सीधे ही कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक 3 लाइन का क्वेश्चन करवा देती हूँ। 3 लाइन का क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 तक आप कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो सॉल्व, अब यहाँ पे फिर से मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। सॉल्व ऐसे ही करना, लेकिन यहाँ पे लाइंस आपको 3 दे रखी है, 1 2 3।
ये आपको मैंने पहले ही बताया, नॉन नेगेटिव हमारे पास ये होता ही होता है, गिवन दे ही रखा होता है। ओके, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल्स दिस, ये दे रखे हमें, ये इक्वेशन 1 2 3 ये होता ही है हमारे पास, राइट। अब वी हैव x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, पुट नंबर 1, पुट x इक्वल्स टू 0, x 0 हो गया तो y कितना आएगा, 2y इक्वल्स टू 120 बनेगा, 2 उधर जाके डिवाइड, ये 60, पॉइंट बन गया आपके पास 0,60, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा, y को 0 पुट करोगे तो सीधे ही x आ जाएगा, सॉरी 120 है ना, तो पॉइंट यहाँ पे बन गया 120,0। फिर हमें करना है पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, दोनों ही 0 पुट करने हैं, 0 प्लस 0 0 ही हो गया, और लेस देन क्या है 120, तो ये ट्रू है, सही है, तो लाइंस इसकी आएंगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की और ही आएंगी। अब नेक्स्ट है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ लेस देन था, अब यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अभी x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 60, तो पॉइंट बन गया मेरे पास 0,60, पुट y इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा 60, तो पॉइंट बन गया 60,0, सेकेंड लाइन हो गई। अब हमें करनी है नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, थर्ड थी हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो x को 0 करोगे y 0 आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x 0 आएगा, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, तो y कितना हो गया 0, पॉइंट हमारा बन जाएगा 0 0, ऐसे जब उसको करोगे तो वो भी 0 0 आएगा, राइट, तो x भी कितना हो गया 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये हमारी कहाँ से पास करी है, थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ही ओरिजिन में से हमारी पास करी है, ये हमारी हो गई। थर्ड उसने दे रखा है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं अब ग्राफ प्लॉट करी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ थोड़ा, यहाँ 120 तक जाएगा हमारा मैक्सिमम, ठीक है, तो मैं 20 का गैप नहीं 40 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे। फोर्टी का गैप लेके हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 80, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 160, सिमिलरली 40 80 120 160, यहाँ 200 अप टू सोन, ये होता ही जाएगा आपके पास जितना आपने ड्रॉ करना है, ज़रूरत नहीं होती इतना वैसे ड्रॉ करने की। फर्स्ट लाइन के पॉइंट मेरे पास ये थे 0,60 120,0, x 0 है y 60 है, तो 60 कहाँ आएगा, यहाँ मिड में, तो ये मेरे पास हो गया 0,60 का पॉइंट, ठीक है। सेकंड है 120,0, तो वो पॉइंट मेरे पास है ये 120,0। अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी सिंपली, पहली लाइन मेरे पास हो गई ड्रॉ, ये ठीक है। लाइंस इसकी क्या थी हमारे पास, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही थी, अच्छा ये हो गई हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन लाइंस इसकी। अब यहाँ पे हमने एक काम किया, यहाँ पे मैंने लाइंस वो नहीं निकाला हमने, है ना, इसका तो चलो मुझे पता ही था नीचे वाली लाइन का। यहाँ हमारे पास था x प्लस वाई ग्रेटर दैन 60, x 0 y 0 पुट करना था, तो 0 ग्रेटर दैन 60, ये ट्रू नहीं है, दिस इज़ फॉल्स, तो इसकी लाइंस टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएंगी ना, क्योंकि फॉल्स हो गया यहाँ पे मेरे पास सेकेंड लाइन। लेकिन इसके पॉइंट्स हमारे पास पहले क्या है, 0 60 और 60,0, एक तो वही हो गया 0,60 मतलब यही वाला पॉइंट, एक तो मेरे पास यही पॉइंट हो गया, इसका भी 0,60, और दूसरा है हमारे पास 60,0 मतलब वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा,
अब फिर से इसकी लाइन भी ड्रॉ करो, पास एक उसी में से होगा, एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास ऐसे। ये हमारे पास पॉइंट है 60 कॉमा, पॉइंट्स लिखते जाना, लाइंस लिखते जाना। ये पिंक वाली लाइन हमारी पहली लाइन थी, तो पहली लाइन कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट लाइन x प्लस 2y, इसके ऊपर लिख लो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये अब कौन सी लाइन है, सेकंड है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये सेकंड भी ड्रॉ हो गई। अब हमने करनी है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मैंने आपको बताया कि ओरिजिन में से ही पास करिए। इसकी लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे, ठीक। अब ये होगा मेरे पास ये रहा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी लाइंस ड्रॉ कर लो ये। अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 भी ड्रॉ कर लो, वो आपके पास ऐसे आ जाएगा। थोड़ा वो गंदा सा हो गया, अब मिलेगा नहीं हमें, तो हमारे पास शेडेड पोर्शन ये आएगा अब, ठीक है। अब मेरे को एक पॉइंट ये पहले से पता है, दूसरा पॉइंट ये भी पहले से ही पता है, लेकिन 2 पॉइंट अब आपको नहीं पता है। जो कौन कौन से पॉइंट्स आपको नहीं पता है आपके पास, एक तो पॉइंट आपको ये नहीं पता होगा, एक ये नहीं पता होगा। अब पहले कोई भी पॉइंट, इनको नेमिंग कर दो, ए दे दो, ये दे दो बी पॉइंट, ये सी कर लो, इधर वाला डी कर लो, लेट, ठीक है। अभी अगर सी की इंटरसेक्शन निकालनी है, इस पॉइंट की इंटरसेक्शन, तो अभी इसको भूल जाओ। तो 2 लाइंस कट करी हैं, एक ये वाली लाइन थी हमारे पास x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी इसकी मेरे को इंटरसेक्शन और इस x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120 की इंटरसेक्शन चाहिए। मतलब x माइनस टू फाइंड c को फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और सेकेंड लाइन थी हमारे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। लेस देन लेकिन चलना, इक्वल लेके चलना, तो यहाँ पे सीधे ही ऐड करो, ये बन गया 2x इक्वल्स टू 120, x आ गया मेरे पास 60, x 60 यहाँ पे पुट कर लो, ये हो जाएगा 60 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, उधर जाके ये हो जाएगा फिर y हमारे पास 30। मतलब ये वाला c पॉइंट आ गया 60, 30। अभी मेरे को चाहिए d पॉइंट। डी पॉइंट देखो किस किस की इंटरसेक्शन करके आ रहा है हमारे पास। डी पॉइंट आ रहा है मेरे पास किसकी इंटरसेक्शन करके, एक x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 वाली लाइन है, और दूसरी कौन सी लाइन है, वही x माइनस 2y वाली लाइन हमारे पास, राइट। अब इनको भी इंटरसेक्ट करवा के इसकी भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने दे रखा है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भी हमारे पास सीधे ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। या माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 60, y हमारे पास आ जाएगा 20, y 20 है, पुट कर लो किसी में भी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 वाली में पुट कर लेते हैं, y 20 है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 40। तो पॉइंट बन गया 40, 20, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। दिस इज द पॉइंट D। पॉइंट D हो गया आपके पास 40, 20। अब कॉर्नर पॉइंट्स हो गए मेरे पास। लिख लो कौन कौन से आए आपके कॉर्नर पॉइंट्स। A आपके पास पहले से ही था 60, 0, B हमारे पास था 120 और 0, फिर C हमने निकाला है 60 और 30, उसके बाद D निकाला हमने 40 और 20। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने लाई करवाने हैं किस पे, Z पे। अब ये Z पे लाई करवाओ एट A 60, 0, Z इक्वल्स टू, Z क्या आएगा 60, 0 पे, Z होगा 300 प्लस 0, ये आ गया 300। फिर एट B 120, 0, 120, 0 पे Z होगा हमारे पास 600 प्लस 0, ये आ गया 600। देन एट C पे आएगा 60, 30, तो 60 और 30 पे ये हमारे पास होगा 300 प्लस 300, ये कितना हो गया 600।
फिर एट मेरे पास आएगा नेक्स्ट डी है 40, 20। तो यहाँ पे z कितना आएगा मेरे पास 40, 20 पे 200 + 200, ये हो गया हमारे पास 400। अब मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है कौन सी, 600 और 600 दो जगह आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले मिनिमम देख लो, एक ही है क्योंकि, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास 300 एट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी कितना है 120, 0 पे, नहीं 120 0 पे नहीं, सॉरी 60, 0 पे है ना, हाँ इस पे है यहाँ, ये रही। तो उसके बाद मैक्सिमम दो है हमारे पास 600, 600, तो यहाँ लिखोगे एंड मैक्सिमम वैल्यूज 600 एट, यहाँ दो पॉइंट्स पे है वो 120, 0 पे एंड 60 और 30 पे, यहाँ दोनों पे, ठीक है। ये हमारा एक ही क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ पूछी हुई थी, तो ये हमारा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही सिमिलरली कर लोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वही प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट करवा दूँगी। नहीं तो हम नेक्स्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, राइट। थैंक यू।